ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸਿਰਫ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰੋ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ 8 ਤੀਰਥ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਚੁਲੇ ਲੈਣ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੌੜੀ, ਇਹ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 68 ਤੀਰਥ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ 68 ਤੀਰਥ ਅੱਜ ਥੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ 68 ਤੀਰਥ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਇਹਦੀ ਕਥਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਰਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 4-5 ਦਿਨ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਣੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਖਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਅਰਜ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਪਰੀਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਵੇ ਜਿੰਨੀ ਖਾਓਗੇ ਓਨੀ ਖਰਚੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੋਨੋਂ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਖਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਖਾਏਗਾ ਉਨਾ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ। ਹੋਰ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜੀ। ਉਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੋ, ਜਿਚਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੇਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਿਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੋ, ਮੂਲ ਦਾ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਥੁੜੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤਿਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੁੜੀ ਦੋ, ਜਿਚਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ। ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਖਾਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ, ਫਿਰ ਅਰਜ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਖਾਏਗਾ, ਆਪ ਕਮਾਏਗਾ, ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਖਰਚ ਬਣੇਗਾ। ਤਿਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੁੜੀ ਦੋ, ਜਿਚਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ। ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਖਾਏ ਖਰਚ ਧਨ ਮਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖਰਚੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਾਦਿਆਂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾਏਗਾ, ਜਪੇਗਾ, ਸਾਚੇਵੇ, ਓਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਟ ਸੱਚ ਨਾਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ। ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਗੁਮਾਨ, ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਟ ਸਚ ਨਾਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਂ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਰਚੋ ਤੇ ਖਾਵੋ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਖਾਵੈ ਖਰਚਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਓ ਫਿਰ ਖਰਚੋ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਖਾਵੈ ਖਰਚਾ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਬਾਣੀ ਕਮਾਓ। ਜੇ ਆਪ ਛਕੋਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖਰਚਾ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਖਾਵੇਂ ਖਰਚਾ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਿਆ ਰਲਾਏ। ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ
शब्द जो पढ़िया गया ये मैं फिर लफ्जी अर्थ कर देना। हे मेरे मित्र, महिमा साधु संग की सुन हो मेरे मीता। हे मेरे मित्र, हे मेरे मीत, आ तेनू साध संगत दी गुरु संगत दी वडियाई दसना। गुरु संगत दे इकट्ठ विच की हुंदा, मैल खोई अंदर जितनी वासना दी मैल है, कई जन्मां दी मैल है, ये खत्म हो जाती है। करोड़ां कीते कोई पाप खत्म हो जाते ने। ते महाराज नाल कहंदे ने, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल भै चीता। थोड़ा जैसे आओ शुरुआत करांगे अज तो इहदी। इत्थे जिन्ने असी इंसान आ संसार विच, शरीरक तौर ते साडे अंग प्रति अंग सब दे इक्को जिहे ने। ये गल वखरी, किसी नूं कोई रोग होवे, बीमारी होवे, उहदी गल वखरी। सब नूं रब ने नेत्र दिते ने, कन दिते ने, 5 ज्ञान इंद्रे दिते ने, 5 कर्म इंद्रे दिते ने, 5 तत्तां दा शरीर बने, अंतःकरण दिता है, इनू शब्द स्पर्श रस रूप दिता है। पर जोत भी सारियां विच इक्को है, दो नहीं। भावें कोई चंगा है, भावें कोई मंदा है, जोत तां एक परमात्मा दी वर्दी है ना। पर सारियां विच एक जोत, इक्को जे अखां, इक्को जे कन, इक्को जे नक, इक्को जिहा अंदर दे सारा सिस्टम, पर सारियां दा सुभाअ इक्को जिहा क्यों नहीं? सुभाअ करके सारी दुनिया इक्को नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब जी ने जो फैसला दिता गुरमत ने, वो कहंदे ने बंदे दी जिंदगी विच सुभाअ दा सब तो वड्डा योगदान है वो बंदा संगत किहो जी करदा पिया है, ਉਹਦਾ बहना उठना किन्ना दे नाल है, उस बंदे दी सोसाइटी किहो जी है। जिहो जी बंदा संगत करदा है गुरमुखो, ओहो जिहा ही बंदे दा सुभाअ बन जांदा है। चंगियां बंदियां दी संगत करेगा, उस इंसान दा किरदार चंगा बन जाएगा। माड़े बंदियां दी संगत करेगा, खिमा करियो, कई बारी बंदा हकीकत वे चंगा होने के बावजूद भी जो माड़ी संगत करता है तो वह जीवन भी ऐसा ऐसा निगर लग पैंदा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च भगत कबीर साहिब के 2 श्लोक, उस विच उन्होंने एक उदाहरण दी बूंद की। बाणी विच स्वांति बूंद का बड़ी बड़ी जिक्र आया है। उस विच वो कहंदे ने जदों आसमान तो बदलों तो बूंद डिगदी है तो उस बूंद दे विच निर्मलता ही है। एक बार मैं यदि विचार की भी सी, पर अज शुरू तो फिर दोबारा आप गल कर लगे सत संगत की। बदलों तो बूंद डिगी, पर वो च ताकत सी, वो च शक्ति सी। पर जिस जमीन दे उत्ते बूंद डिगी, वो पानी का कतरा डिगा, वो जमीन नकम्मी सी, कलर वाली जमीन सी, वो मिट्टी जरखेज नहीं सी। पर प्यारिओ, जिस बूंद विच इन्नी ताकत, जदों वो भैड़ी नकम्मी जमीन ते डिगी, वो बूंद नूं उस जमीन की संगत ने साड़ दिता, वो खत्म कर दिता। सुनो, ये श्लोक है कबीर निर्मल बूंद आकाश की, पर गई भूम बेकार। आकाश असी लफ्जी अर्थ पहला मैं कर रहा, आसमान तो आई कोई निर्मल बूंद, पर गई भूम बेकार। जे नकम्मी जमीन ते डिगी, बेकार जमीन ते डिगी, बिन संगत यूं मानई होए गई पाटशार। जिवें वो बूंद कलरी जमीन ते नकम्मी जमीन ते डिगी, ओदा अपना वजूद ही जमीन की संगत ने खत्म कर दिता। कह लगे असल च ये बूंद की गल नहीं, ये हर उस इंसान की गल है। आकाश तो निर्मल बूंद आई। सुनियो, बारमुखी अर्थ ने आसमांती बूंद। असी जिन्ने हाँ अर्श अर्श तो आए, सारियां अंदर जो आत्मा है, जो जीव आत्मा है, सच एवे एदा असला मैला थोड़ा है, एदा मूल परमात्मा मैला ते नहीं ना। जिवें आसमान तो डिगी कोई बूंद अत दी निर्मल है, ते मैली नकम्मी धरती ते डिगे ते खत्म हो जाती है। सारियां अंदर जिहड़ी आत्मा है बिल्कुल निर्मल है, शुद्ध है, मैल रहित है। पर जदों इस आत्मा ने शरीर धारण किया ते अगों जे संगत ही नकम्मे बंदियां दी मिल गई, हकीकत है वो निर्मल बूंद भी माड़ी संगत करके खत्म हो गई है। वो सारा वजूद उहदा मैला हो गया। फिर अर्ज है कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम विकार,
बिन संगति इਉਂ ਮਨ ਹੀ। इस तरह मनुख संगत तो बिना होए गई पटशार सच्ची मुच्ची बंदे दा अंदर भी खत्म हो जाता है। हुण दूसरी इस दे नाल एक होर श्लोक है, फिर अर्थ सुनियो, ये सीधे होर सौखे अर्थ करा। एक वो बच्चा जिहड़ा जन्म वेले बिल्कुल निरशलक है, निर्वैर है, निर्मल है, जे उस बच्चे निर्मल हिरदे नूं संगत माड़ियां दी मिल जाए सौखा हो जाएगा। माड़े लोकां दी संगत मिल जाए, ਉਹੀ ਬੰਦਾ डाकू बन सकता है, चोर बन सकता है, लुटेरा बन सकता है, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ पाप कर सकता है। पर जे ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ जे किते चंगी संगत सोबत मिली हुंदी ते वो बंदा भगत भी बन सकता है, सूरमा भी बन सकता है, वो ब्रह्म ज्ञानी भी बन सकता है, वो विद्वान भी बन सकता है, सच एवं तत्वेता ब्रह्म ज्ञानी बन सकता है। सब तो यादी गल निर्मल हिरदा उदों ही प्रवृत्त हुंदा है जिहो जिहनूं संगत मिलती है। सतगुरां ने बाणी विच पहला बचन किया, कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम विकार, बिन संगति मानी होए गई पाटिशार। दूसरा वचन है, कबीर निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम मिलाए। फिर इसनूं सुनियो, आकाश तो आई बूंद निर्मल है, जे जमीन जरखेज होवे, वाई होवे, जिवें आपां खेती करने जमीन च ताकत होवे, वो बूंद मिट्टी विच डिग पे प्यारिओ, वो बूंद मिट्टी विच रच जांदी है। आप निर्मल सी, जमीन चंगी मिल गई ते उस बूंद नूं कोई जमीन तो वख नहीं कर सकता। इहदा मतलब हिरदा सी निर्मल, जदों जन्म होया ते संगत मिल गई चंगे पवित्र हिरदियां दी, वो इस तरह जुड़ गया परमात्मा दे नाल जिवें निर्मल बूंद चंगी जमीन विच डिगी, उहनूं कोई वख नहीं कर सकता। इसनूं फिर थोड़ा जिहा, क्योंकि आप सब नूं पता, मैं यतन करना कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब ते गुरमत दे दायरे चों आपां ना निकलीए। कई बारी शब्द की कथा जो आप करने, मैं मंजी साहब भी किया, मैनू 30 साल तो वध समा हो गया बोलदे, सच्ची जे मैं साखी सुनावांगा, कोई व्यंग सुनावांगा, सब नूं चेते हो जाना है। मेरा ख्याल 99% वो 2 साल बाद भी कहणगे भाई साहब पिछले साल ये सुनाया। पर गुरमुखो गहरे शब्द की कथा होवे, कदी नहीं किसे क्या पिछले साल आ शब्द की कीती। दुखांत नहीं कहांगा, क्योंकि साडा अभ्यास जिस पासे है, जिधर साडी बिरती है, अंदर साडा छेती दूजी चीज नूं स्वीकार नहीं करता। फिर अर्ज है, मैं बिल्कुल साखी भी सुनावांगा, पर मेरी बेनती है, जिस गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं आपां मत्था टेकने पे आ, इस विच इन्ना रब्बी खजाना भरिया पिया गुरमुखो, केवल ना मैं कई बारी सोचना, असीं कह दिंदे आ भी रमालियां च सतगुरु जी ने चौर करदे पए हो, पालकी च ने, की फायदा जे तुसीं पढ़दे नहीं तां। मैं कहना जे कथा विच भी कलियां गल्लां ही सुनाई जांदे आ, मैं अपनी गल कर रहा, शब्द की गहराई विच नहीं उतरदे, ये भी तां रमालियां विच टकी कथा है ना। सतगुरां ने शब्द नाल बाणी अपनी व्याख्या खुद आप कर दी। मैं कल भी आप जी नूं कहा सी, एक गुरमुख जीवन ते दूजी गुरमुखी, क्योंकि जेड़े सज्जन गुरबाणी नूं अभ्यास कर लग पैण, नाम सिमरन करन, गुरबाणी पढ़न, मैं महाराज दी हजूरी च कहना, उन्हां बंदियां नूं बाहर दे टीके दी नहीं लोड़ रहिंदी, क्योंकि शब्द की व्याख्या खुद शब्द आपे ही करी जाता है। हुण असीं इत्थे शब्द वरतिया निर्मल बूंद लिया कि आसमान तो डिगी निर्मल बूंद नकम्मी धरती च डिग जाए तो खराब हो जाती है, जे जरखेज धरती ते डिग पवे तो उहदे विच ताकत। हुण इस दी व्याख्या श्रीमान भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने की। इनू थोड़ा जिहा ध्यान नाल सुनियो, क्यों क्या भी खराब हो गई, क्यों क्या भी वो चंगी कीमती हो गई, क्योंकि पुराने शास्त्रकार कहंदे आ कि सवांती बूंद जे पानी विच डिग पवे ते सच्ची मुच उत्थे पानी का सोका नहीं पैंदा, उहदा विस्तार हो जाता है। मान लो समुद्र च डिग भी किन्ना विस्तार हो गया उहदा। जे ओही बूंद जमीन दे विच डिग पवे ते जिथे वो जमीन च चंगी जमीन च डिगेगी, उहदे विचों जिहड़ा फल है वो बड़ा भरवां निकलेगा, मिठा रूप धारण कर सकती है बूंद, वो कुशैला रूप भी धारण कर सकती है। सच एवे वो जिहो जै बाग विच डिगेगी, जिहो जै खेत विच डिगेगी, जे अंगूरां दे खेत ने तो वह रस अंगूरां दा बन जाएगा,
जे अंबां दे बाग ने वो अंबां दा रस रूप हो जाएगी। सच ये वे कि जिहो जै धरती ते डिगेगी ओ जै ओदा फल बन जाएगी। ओही बूंद जे केले विच डिग पवे, मेरी बेनती सुनियो, है निर्मल उच ताकत है। जे ओही बूंद केले विच डिग पवे ते ओ कफूर बन जाएगी। गुरमुखो जे सिप्पी दा मूँह खुला होवे ते सवांती बूंद सिप्पी विच डिग पवे ते सिप्पी अपना मूँह बंद करके पानी विच डुब जाती है। जिन्नी गहरी सिप्पी डुबदी है उन्नी कीमती मोती का जन्म हुंदा है। बूंद तो उही है जिहड़ी मुस कपूर बन गई। बूंद तो उही है जिहड़ी मिट्टी विच मिल के फल का रस बन गई। बूंद तो उही है जिहड़ी पानी विच डिग के पानी बन गई। अगली बेनती करा, जे सिप्पी च डिगे मोती बन जाती है। जदों बूंद डिगे किते सप का मूँह खुला होवे, जे सप दे मूँह विच चली जाए तो जहर बन जाती है। मैं फिर आपनू बेनती करांगा, क्योंकि अज सब तो वड्डी जिहड़ी समस्या है ना, चाहे इत्थे वे चाहे उत्थे वे, असीं सारे कल्पने जरूर, कल्पना हल नहीं हुंदी। कल्पना तो मैं भी कल्प के तुर जांगा, या स्टेजां ते भी चलदा, हाय आ हो गया आ हो गया, ज़्यादा कल्पना, खिमा कर दिया जे, कल्पा कल्पी जाना रोई जाना हल नहीं हुंदा। सब तो जिहड़ी जिहड़ी जड़ चीज़ पकड़न वाली है वो ये वे कि बुराई जन्म कित्थों लैंदी पई है। फिर अर्ज है, अज असीं डॉक्टर कोल जाने हैं, कोई बीमारी हुंदी है, शरीरक तौर पर कुछ होवे, डॉक्टर ज्ञान थोड़ी बहुती दवाई दे देगा भी चलो बंदे नूं आ कोई दे दिओ। उस तो बाद कहेगा पहले दे टेस्ट करो, इहदी जड़ च जाओ है कि जिन्हों चक्कर आया क्यों आया है, जे डिग्गिया क्यों डिग्गिया, जे इत्थे पीड़ा उठी तो क्यों उठी। वाहिगुरू जी वो टेस्ट करदा, कई कई दिन के तजर्बे तो बाद वो मीटिंग करके डॉक्टरां नाल पुछ पुछा के ये कहंदा इस बंदे नूं ये बीमारी है। जिहड़ी बीमारी समाज नूं लगी इहदी जड़ तां संगत विच पई हुई है। बंदा संगत किहो जी कर रहा है, उधर असीं कई बारी ध्यान नहीं देंदे, नहीं जी ये तां नॉर्मल जी गल, सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। सब तो पहला मैं अज ये विशा तां चुनिया, कई दिन आपां चलांगे इस विषय ते कि संगत किहो जी बंदा करदा पिया है।